Hello students, I am Vishal Goyal, Assistant Professor, Department of Computer Science from Shri Lal Bahadur Shastri, Arya Mahila College, Barnala. C++ language ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ that is about input output statement or input output ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ C++ input ਜਾਂ output ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। C++ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ C++ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, C++ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੇ C++ ਤੇ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਰੇਜ਼, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ C++ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ। तो अज आप देखते हैं कि C++ इनपुट आउटपुट किद्दां कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ printf hello world। printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? printf ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, printf ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ a ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ %d ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। %d ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। तो इसी तरीके ਨਾਲ अगर ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 4 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ scanf %d %f। %d ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ %f ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ। %d ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ %f ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ b 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ printf ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ printf sum of %d and %d is equal to %d। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ a b ਐਂਡ c ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ %d ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ %d ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਥਰਡ %d ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਤੇ b ਨੂੰ ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 30। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ sum of 10 and 20 is equal to 30। ਸੋ ਜੋ ਇਹ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ? sum of 10 and 20 is equal to 30। ਸੋ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ ਲਈ %d ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਲਈ %f ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ %c ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਹੁਣ C++ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ printf ਜੋ C ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C++ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਤਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ cout। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ cout, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ। तो cout ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cout ਦੈਨ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। तो ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਜੋ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ C++ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ cout ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ scanf %d a। ਤੋ ਇੱਥੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ %d ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C++ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? C++ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ C
इंक्रीमेंट। सीन दैन इहदा सिंटैक्स की होएगा सीन। हुण इत्थे अपने कोल अलग तरह दीयां दो ब्रैकेट्स ने ग्रेटर दैन साइन वालियां। सो इत्थे सीन ते ए वाले ऑपरेटर नूं आपां जो रैड कलर च शो हो रहा है इहनूं आपां बोलदे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा तो जो आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं कीबोर्ड तो वो वैल्यू कित्थे जाके स्टोर होएगी ए दे विच। हुण इत्थे आपां नूं एडवांटेज की मिल रही है कि आपां नूं फॉर्मेट स्पैसीफायर याद करने की जरूरत नहीं है C++ कि आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं फ्लोट वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो वो परसेंटेज F यूज़ करना है। सो इत्थे आपां नूं फॉर्मेट स्पैसीफायर नोट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरैक्ट वेरीएबल नेम दिंदे आ ते जो भी वैल्यू इनपुट करवाई है वो वेरीएबल च स्टोर हो जाए। इसी तरीके नाल होर आपां देखते हैं स्टेटमेंट। इत्थे तुसीं देखो दो वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हो कि इंटीजर वैल्यू ए च जा रही है तो फ्लोट वैल्यू बी च जा रही है। ये सी की स्टेटमेंट है। सो इनू अगर आप C++ च लिखना है इत्थे आपां लिखांगे सीन दैन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी। सो इत्थे ध्यान रखना है कि आपां ए ते बी नूं कोमा नाल सैपरेट नहीं करांगे, यानी कि अगर तुसीं लिखदे हो सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए कोमा बी सो रोंग होएगा। इहदा सही सिंटैक्स यही है कि सीन जिन्ने भी तुसीं वेरीएबल एंटर करवाने हैं उन्नी बार ही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना पएगा। सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए दैन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अगेन बी। तो आटोमैटिकली जी भी तुसीं वैल्यू दोगे वो पहला ए च जाएगी दैन सैकेंड वैल्यू बी च जाएगी। देखो अपने को अगर ये मैसेज है सी का, हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दो कि इनू अगर आप पार्ट्स च डिवाइड करिए सब तो पहला आप की प्रिंट करवा रहे हैं सम ऑफ एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। दैन सैकेंड पार्ट की है परसेंटेज डी इत्थे की है ए दी वैल्यू। सो सैकेंड पार्ट हो गया है क्योंकि आप ए दी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए नू एज इट इज़ नहीं प्रिंट करवाना। दैन एंड आ रहे अपने को एंड नू आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। अगेन परसेंटेज डी आ रहे यानी कि उत्थे आप वैल्यू प्रिंट करवानी है बी दी। उस तो बाद इक्वल टू ऑपरेटर आ रहे हैं इक्वल टू भी आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। उस तो बाद अगेन परसेंटेज डी, इत्थे परसेंटेज डी किनू रिप्रजेंट कर रही है सी दी वैल्यू। सो इत्थे अपने को टोटल 6 पार्ट्स हो गए। सम ऑफ दैन परसेंटेज डी ए दी वैल्यू दैन एंड फिर बी दी वैल्यू फिर इक्वल टू एंड दैन सी दी वैल्यू। सो टोटल 6 पार्ट्स हो गए। तो इनू अगर आप C++ नोट करना है आप इस तरीके नाल नोट करांगे सी आउट। पहला देखो इन्वर्टड कोमा च आप लिखे है सम ऑफ क्योंकि सम ऑफ आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। दैन इंसरशन ऑपरेटर उस तो बाद ए हुण आप विदाउट कोट्स लिखे है क्योंकि आप ए दी वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर आप इनू ए नू इन्वर्टड कोमा च लिखते तो ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाता, बट इत्थे आप ए दी वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो इस करके इनू विदाउट इन्वर्टड कोमा नोट करांगे। अगेन इंसरशन ऑपरेटर दैन एंड हुण आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। सो इनू इन्वर्टड कोमा च नोट किया है। दैन अगेन इंसरशन ऑपरेटर फिर बी दी वैल्यू प्रिंट होएगी। दैन इंसरशन ऑपरेटर इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट होएगा क्योंकि इन्वर्टड कोमा च है। उस तो बाद इंसरशन ऑपरेटर दैन सी। हम इत्थे टोटल देखो थोड़े को 6 पार्ट्स हो गए तो 6 बार ही अपन इंसरशन ऑपरेटर लगाना पएगा तो लास्ट सैमी कोलन नाल अपनी स्टेटमेंट टर्मीनेट हो रही है। सो ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। सो इनपुट लिए आप C++ यूज़ करांगे सीन स्टेटमेंट तो आउटपुट लिए आप यूज़ करांगे सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट के विच आप एक ऑपरेटर यूज़ किया है जिन्होंने आप बोलते हैं इंसरशन ऑपरेटर या फिर पुट टू ऑपरेटर। इसी तरीके नाल सी इहदे विच जिहड़ा ऑपरेटर यूज़ किया है उन्होंने आप बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। हुण इत्थे देखो अपने कोल एक सिंपल जिहा प्रोग्राम है जिहड़ा कि सी लैंग्वेज च लिखिया गया। आप इनू देखांगे कि आप C++ किवें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनू नोट करना है C++ लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पहला इनू रीड करो, काफ़ी ईजी है। पहला आप 2 हैडर फाइल्स इंक्लूड कीतियां ने stdio.h एंड conio.h। stdio.h आप क्यों यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल है, ये आप यूज़ करते हैं scanf ते printf नू यूज़ करने लई। दैन कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, एक हैडर फाइल आप यूज़ करते हैं क्लीयर स्क्रीन और getch फंक्शन नू यूज़ करने लई। दैन मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, 3 वेरीएबल डिक्लेयर किए इंट ABC। उस तो बाद printf एंटर 2 नंबरस, 2 नंबरस आप एंटर करवाने लिए एक मैसेज प्रिंट आउट किया है। दैन scanf यानी कि आप इनपुट करवा रहे हैं 2 वैल्यूज़ तो 2 वैल्यूज़ जा रही ने ए ते बी च। दैन सी दे विच आप दोनों नू ऐड करके उन्हों का सम आ गया सी दे विच। दैन printf इत्थे आप सेम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि सम ऑफ ए दी वैल्यू एंड बी दी वैल्यू इज इक्वल टू सी।
तो इन्हें हम देखना ਆਪਾਂ C++ लैंग्वेज किमें लिखांगे। सो सब तो पहला stdio.h ਆਪਾਂ क्यों यूज़ कर रहे हैं printf ਤੇ scanf ਲਈ, बट C++ 'ਚ ਆਪਾਂ printf ਤੇ scanf नहीं यूज़ करांगे। C++ 'ਚ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं scene ਤੇ cout। सो scene ਤੇ cout ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ यूज़ करांगे C++, that is iostream.h, input output stream.h। then ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ getch ਵੀ यूज़ करांगे, इसलिए ਆਪਾਂ conio.h यूज़ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। then मेन फंक्शन उदा ही स्टार्ट होएगा, क्योंकि आप देख के हटे कि C तो C++ काफ़ी सिमिलैरिटी ने। सो फंक्शनस डिक्लेरेशन उदा ही होणगियां जिमें C लैंग्वेज च हुंदियां सी। तो मेन फंक्शन स्टार्ट किया, दैन डिक्लेयर किए 3 वेरीएबल A B एंड C। सो देखो अपने को सेम सिंटैक्स है, सेम तरह ही आप वेरीएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। दैन है printf एंटर 2 नंबरस। सो इनू आप C++ च हुण किवें नोट करते हैं, आप लास्ट स्लाइड च देखे है, दैट इज cout स्टेटमेंट। cout, then insertion operator, and then inverted commas enter 2 numbers। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, enter 2 numbers ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਤੇ B। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ cin extraction operator A and then again extraction operator B। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ C = A + B, ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ अर्थमैटिक स्टेटमेंट इतने आप यूज़ कर रहे हैं, तो नाल ही वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं C। उस तो बाद है printf, अगेन printf स्टेटमेंट आप किमें यूज़ करांगे C++ cout देना। cout सम ऑफ A एंड B = C। सो इतने ध्यान रखना है कि आप जी वैल्यूज़ जोड़ा भी मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करवाना है उन्होंने आप अलग नोट करांगे, तो उन्होंने आप इनवर्टड कोमा च नोट करांगे। उस तो बाद जी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो अलग सैपरेट पार्ट होएगी, तो वैल्यू वाला जो वेरीएबल है वो आप विदाउट इनवर्टड कोमा नोट करांगे। उस तो बाद getch एज इट इज़ यूज़ होएगा एंड दैन फंक्शन क्लोज। सो ये C++ आप एक प्रोग्राम सिंपली किमें नोट किया है। इत्थे जस्ट डिफरेंस की है कि आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट चेंज की है। पहला printf ते scanf यूज़ कर रहे सी, हुण आप C++ यूज़ कर रहे हैं scene ते cout। ते नाल ही आप scene ते cout नूं यूज़ करने लई हैडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, that is iostream.h। then scene ਤੇ cout है की है, पर पता है कि printf ਤੇ scanf की ਹੁੰਦੇ ਸੀ, प्री डिफाइंड फंक्शनस ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बट ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि scene ਤੇ cout ਵੀ फंक्शनस ने, बट एक्चुअल C++ ਦੇ ਵਿੱਚ जो scene ਤੇ cout आप यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शनस नहीं है, वो ने ऑब्जेक्ट। cout इज़ ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ऑब्जेक्ट की होंगे अपन पता है C++ लैंग्वेज की है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सो फिलहाल तुसी सिर्फ इन्ना कि याद रखो कि cout की है एक जस्ट ऑब्जेक्ट है। ये बारे डिटेल च थोनों सबसीक्वेंट लैक्चर्स पता लग जाएगा कि एक्चुअल च ऑब्जेक्ट की होंगे। तो cout की एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी बनया होया जिन्होंने आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो कितने बनया होया iostream.h फाइल, इसलिए आप iostream.h फाइल इंक्लूड करते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने आप बोलते हैं इंसरशन और पुट टू ऑपरेटर। सो इतने 2 लैस दैन के साइन ने, 2 लैस दैन के साइन जो आप लिखते हैं तो लैस दैन के साइन नहीं रह जाते, वो की बन जाता एक इंसरशन ऑपरेटर बन जाता। इसी तरीके नाल अपने को सीन ऑब्जेक्ट है, सीन भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है iostream.h फाइल के विच। इत्थे जो आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं 2 ग्रेटर दैन के साइन ने, तो उन्होंने आप बोलते हैं एक्सट्रैक्शन और गैट फ्रॉम ऑपरेटर। तो इन्होंने दोनों को यूज़ करने लिए वी नीड टू इंक्लूड हैडर फाइल, आपको इंक्लूड करनी पैंदी है iostream.h फाइल। iostream.h फाइल की है, इट कंटेन्स डिक्लेरेशंस फॉर सीन cout, ये दोनों ऑपरेटर जो इंसरशन ते एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं। सो इन्हों की डिक्लेरेशन iostream.h फाइल की गई है, इसी करके आप इन्हों डायरैक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो एक अपने को एंडल स्टेटमेंट है जो कि न्यू आई है C++ ਦੇ ਵਿੱਚ। एंडल स्टेटमेंट जिदा तुसी printf स्टेटमेंट यूज़ करते सी, printf स्टेटमेंट आप अगर अपने मैसेज ਨੂੰ न्यू लाइन पर लैके जाना है, करसर ਨੂੰ न्यू लाइन पर लैके जाना है, तो आप यूज़ करते हैं \n। तुसी सेम एज इट इज़ C++ च भी यूज़ कर सकते हो \n, बट इत्थे एक अपने को होर चीज़ भी है एंड एल भी उदा ही काम करेगी, बट इनू लिखण का तरीका की है वो देखते हैं आप।
एंड एल की है, एंड एल इज़ आल्सो ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंड लाइन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आप लाइन में एंड करके न्यू लाइन च एंटर करते हैं। ਹੁਣ देखो अपने को इत्थे एक स्टेटमेंट है सी आउट हैलो वर्ल्ड दैन \n, ये की करेगा मैसेज प्रिंट कराएगा हैलो वर्ल्ड एंड उस तो बाद करसर अपना चला जाएगा न्यू लाइन पर, क्योंकि \n किनू रिप्रजेंट करता है न्यू लाइन। सो इनू अगर आप एंड एल दे नाल लिखना है, एंड एल हुण की एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सो सी आउट इत्थे देखो पहला हैलो वर्ल्ड आप एज इट इज़ प्रिंट करवाया, उस तो बाद एंड एल आप इन्वर्टड कोमा च नहीं नोट करते, एंड एल हमेशा आप विदाउट इन्वर्टड कोमा नोट करते हैं। सो इस करके इतने दोबारा तो आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया एंड दैन सॉरी इंसरशन ऑपरेटर लगाया है एंड दैन एंड एल ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲੋ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਲਾइन च ਆਪਾਂ एंटर कर जाए। देखो एक होर स्टेटमेंट है अपने को हैलो \n वर्ल्ड, इत्थे की होएगा पहला हैलो प्रिंट होएगा दैन न्यू लाइन च जाएगा, उत्थे वर्ल्ड प्रिंट होएगा, यानी कि हैलो तो वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन च प्रिंट होणगे। सो इनू अगर आप एंड एल नाल यूज़ करना है तो किवें यूज़ करांगे, सी आउट देखो पहला आप हैलो एज इट इज़ प्रिंट करवाया, दैन एंड एल की है विदाउट इन्वर्टेड कोमा लिखते हैं। सो इस करके आप दोबारा इंसरशन ऑपरेटर लगाया एंड दैन एंड एल की करेगा न्यू लाइन पर जाएगा, उस तो बाद फिर आप वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं।